اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 34 معراجیں کرائی گئی ہوں پھر کیا اعتراض ہے؟ اس میں خواب میں بھی ہو، بیداری میں بھی ہو، سبحان اللہ، اور اگر یہ ثابت ہو جائے سرکار کو روزانہ معراج ہوتی تھی پھر کا اس پر سب متفق ہے کہ نبی آئے، لیکن کس بدن کے ساتھ آئے؟ کا حقیقی واقعی بدن کے ساتھ آئے، واہ واہ، اصلی بدن جو نبیوں کا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی اصل باڈیز جو ہے وہ ڈسٹرائے نہیں ہوتی، بے شک، وہ قائم رہتی ہے، حیات بھی ان کی حقیقی ہوتی ہے، مجازی نہیں ہوتی، سبحان اللہ، سچ مچ زندہ ہوتے ہیں۔ اور پھر زندہ ہو کر یہ ایک مسئلہ تھا، جب تک جبریل نہ آئے نبی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اگر جبریل کے آنے سے ہی پتہ ہوتا ہے تو جبریل اپنی تو ادھر مصروف ہیں، واہ، ان سارے نبیوں کو کس نے جا کے بتلایا ہے کہ سرکار آ رہے ہیں، چلو انتظار کرو؟ سبحان اللہ، واہ واہ، اس سے پتہ چلا بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں نبی اور خدا کو آپس میں پتہ ہوتا ہے، جبریل کو پتہ نہیں ہوتا۔ بے شک، معراج سے جب سرکار واپس ہوئے نا، اس وقت نماز کا سبق تعلیم ہوا کہ نماز کی رکعتیں اتنی ہوں گی۔ یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، پہلے 2 رکعتی نماز فرض ہوئی ہے، 3 رکعتوں والی، یہ 4 والی فرض نہیں تھی، یہ بات ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، یہ بات سرکار نے ایڈیشن کیا ہے۔ جب 2 رکعتوں والی تھی اور اسی رات سکھائی گئی تو وہ تو واپسی پر سکھائی گئی، اس میں پڑھنا کیا ہے، کون کون سی صورت پڑھنی ہے، کتنا سبق پڑھنا ہے، منہ کدھر کرنا ہے، سجدے کتنے کرنے ہیں، رکوع کتنے کرنے ہیں، یہ تو معراج سے واپسی پر تعلیم ہوئی۔ اے جڑی جانے تو پہلے پڑھ لگے ایک ایسی۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے جی، واہ، سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ سبحان اللہ، ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا سبحان اللہ، الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سبحان اللہ، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ، إن الله وملائكته يصلون على النبي حق یا نبی، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، أصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة وعلى آلك وأصحابك يا محترم حاضرین، آپ حضرات کو تشریف لائے ہوئے کافی دیر گزر چکی ہے۔ میں چاہوں گا کہ وقت کم سے کم خرچ کروں تاکہ آپ کا ذوق شوق زندہ ہی رہے۔ سبحان اللہ، ہم لوگ اپنے ٹھیک وقت پہ چلے تھے، لیکن راستے میں خلاف توقع کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہونے کی وجہ سے کافی دیر تک روڈ بلاک رہی، تو ہم لوگ پر نہ پہنچ سکے۔ تاہم آپ نے زحمت انتظار اٹھائی ہے، اس کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے کہ افضل العبادات احمدها
اللہ اللہ جتنا کسی عبادت میں تکلیف بڑھ جائے اتنا اجر بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ نے چونکہ یہاں بیٹھنے کی زحمت عام معمول کے مطابق سے کچھ زیادہ اٹھائی ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں آپ زیادہ اجر کے مستحق ہیں. اللہ آپ کو جزائے. قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. قرآن مجید کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. سبحان اللہ. وہاں کا وہ ذات اللہ جس نے سحر کرائی رات کے وقت اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سبحان مکہ اللہ. والی مسجد سے شروع کر کے فلسطین والی مسجد تک وہ مسجد کہ الذی بارکنا حولہ. سبحان اللہ. وہ مسجد اقصی جس کے گردا گرد ہوئے ہم نے اپنی برکتوں کا فیضان فرما رکھا ہے. سبحان اللہ. لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. سبحان اللہ. تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیوں میں سے دکھلائیں یا اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اللہ سبحان اللہ. بے شک وہی اچھی طرح سے سننے والا اور اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے. سبحان اللہ. یہ معراج شریف کو براہ راست دین کرنے والی یہ آیت ہے. سبحان اللہ. اور قرآن مجید کے اندر اور بھی چند جگہوں میں ذکر آیا ہے معراج کا، تو اس پر بحث چھڑتی ہے کہ کبھی اس کا نام رویا رکھا گیا ہے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ سبحان اللہ. إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. سبحان اللہ. اے معبود، ہم نے نہیں بنایا اس خواب کو جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا مگر لوگوں کے لیے ایک آزمائش، ایک امتحان. کہتا ہے یہاں لفظ رویا استعمال ہوا ہے. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 34 معراجیں کرائی گئی ہوں سبحان اللہ. پھر کیا اعتراض ہے؟ کیا بات. واہ واہ. اس میں خواب میں بھی ہو، بیداری میں بھی ہو. سبحان اللہ. اور اگر یہ ثابت ہو جائے سرکار کو روزانہ معراج ہوتی تھی پھر سبحان اللہ. اللہ اللہ. بخاری سبحان اللہ. واہ. چھوٹا سادہ تصور میں نکلا ہوں. سبحان اللہ. یہ میرے لیے پہلا معاملہ نہیں ہے. واہ. میں نے دوست بھی بڑے پیدا کیے، دشمن بھی بڑے پیدا کیے. سبحان اللہ. کلمہ حق کہنے والا آدمی دوست بھی پیدا کرتا ہے، حق ہے. دشمن بھی پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ. لیکن جس نے اکھلی میں سر رکھ دیا ہو اس کو دھماکوں کا کیا ڈر رہ جاتا ہے. واہ واہ. سبحان تو اللہ. ساری زندگی عمر گزری ہے اسی دشت کی سیائی میں، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کتنے مولانا ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اللہ اللہ. کتنے پیر ہم سے ناراض ہو جائیں گے. کیا ہم بات. پیروں کے پیر کی اولاد میں سے ہیں، کسی پیر کا بھی ڈر نہیں ہے. سبحان اللہ. اور مولوی بھی جتنے زور والے مختلف مذہبوں کے تھے نا، ایک بار تو ہم سے پنجہ لڑا کے دیکھ چکے ہیں کتنی قیمت ہے ان کی. اللہ اللہ. یہ بھی ہمیں ڈر نہیں کہ کتنے مولوی ناراض ہو جائیں گے، وہ کہاں روک لیں گے. کس مسئلے نہیں، ماں کا دودھ ہے جس کا دل چاہتا ہے. مرحبا. خود بھی آپ اس کے کام کرتے کو آدمی بلا کے لے آئے. سبحان اللہ. یہاں نہیں اس کا جگر کام کرتا پاکستان میں چلے. ہم نے یہ سارے میدان دیکھے ہوئے ہیں، ہر مذہب سے ایک ایک مرتبہ دنگل ہوا ہے شاہزور آدمی سے. اس لیے پریشانی کوئی نہیں ہے. اللہ اللہ. کون کس مذہب کا آدمی ہے کھا جائے گا، نہ کھانے کی توفیق ان میں سے کسی میں سے نہیں. حق ہے. سبحان اللہ. ہم نے سارا ناپ توڑ کے دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے بخاری کا نام لیتے وقت بڑے فراغ دلی سے نام لیتا ہوں. بخاری اللہ. بخاری اگر کہے سرکار کو روز معراج ہوتی ہے تو پھر سبحان کس معراج کا جھگڑا کرے گا. واہ. باب صیام تطوع، صوم وصال، اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا روزے رکھنا، واہ. دن کو بھی روزہ، رات کو بھی روزہ، پھر دن کو بھی روزہ، رات کو بھی روزہ. نہ دن کو کھانا نہ رات کو کھانا، نہ پانی پینا نہ دن کو پینا نہ رات کو پینا. اب جناب صحابہ نے پیچھے پیچھے سرکار کو دیکھ کے ایسے کرنا شروع کر دیا. واہ. جب کرتے کرتے ان کی باڑیاں خشک ہونے لگی. سرکار نے پوچھا کیوں بیمار سے نظر آتے ہو، خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو رات دن متواتر روزے رکھتے دیکھا، نہ رات کو کھاتے نہ دن کو، سبحان رات کو اللہ. پیتے نہ دن کو. تو پھر ہم ابھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دیے. سرکار فرمایا ایوکم مثلی، اللہ. اور تم میں میرے جیسا کون ہے؟ حق ہے. جنہوں نے یہ کتاب فرمایا تو صدیق اکبر ان میں موجود ہیں، سبحان فاروق اعظم ان میں موجود ہیں، عثمان غنی حیدر کرار میں موجود ہیں، ان میں موجود ہیں. اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری. استفہام انکاری میں کلام مثبت و معنی منفی ہوتے ہیں.
یہ اگر پازیٹیو اسٹیٹمنٹ پازیٹیو ہو جو میننگ ہوتے ہیں سیمانٹکلی وہ نیگیٹو ہوتا ہے. کیا کہنا ایکم مثلی تم میں میرے جیسا کون ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار بولتے تم میں میرے جیسا کوئی نہیں ہے. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ بیٹا ہے وہ باپ آیا ہے کام پر سے تو آگے بیٹا رو رہا ہے, پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہتا اماں نے مارا ہے. تو ماں پوچھتی ہے میں نے تمہیں مارا ہے, اس کا کیا مطلب لوگے؟ ماں یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے مارا ہے, میں نے تمہیں مارا ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ خامد کو پاور کرائی ہے نہیں مارا. کس زبان سے؟ استفہام انکاری ہے. استفہام انکاری اس معنی میں ہوتا ہے کلام مثبت ہو معنی منفی ہوتے ہیں. اللہ اللہ پوچھتی ہے میں نے مارا ہے تمہیں؟ اب اس کا کیا مانا؟ میں نے نہیں مارا. اب وہ بیٹا شرمندہ ہو جاتا, بات میں تو جھوٹا ہے نا, لیکن اب ماں پوچھے میں نے مارا ہے, حق ادھر بیٹا چپ ہو جاتا ہے. لیکن اس کا معنی کیا نکلا؟ ماں کی بولی سے کیا بتلایا؟ ماں کی بولی نے بتلایا کہ میں یہ کہہ رہی میں نے نہیں مارا. اب سرکار کا فرمانا کہ تم میں کون میری مثل ہے, کون میری مثل, کلام تو مثبت ہے. معنی یہ کہ میری مثل تم میں کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. اگر کروڑ ولی ملائیں تو ایک صحابی نہیں بنتا, بے شک اور سارے صحابی ملائیں تو خلفائے راشدین نہیں بنتے. بے شک. تو اب بتائیے خلفائے راشدین موجود ہوں, ان کو سرکار فرمائے کہ تم میں میرے جیسا کون ہے؟ اللہ اللہ. مطلب تم میں میرے جیسا کوئی نہیں. اگر صفحے صحابہ میں سرکار جیسا کوئی نہیں تو مولوی صاحب کو کھجلی کیوں ہو رہی ہے کہ میں حضور جیسا ہوں؟ واہ واہ واہ. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ میں جب صحابہ حضور جیسے نہیں تو میں تو حضور جیسا ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. گئے دونوں جہاں دو نظر سے گزر, اللہ پر تیری شان کا کوئی بشر نہ ملا. سبحان اللہ. تیری ہر جگہ دیکھی نرالی بھبن, ہائے ہائے. پر پتا تیرا کسی کو مگر نہ ملا. سبحان اللہ. واہ سیدی. سبحان اللہ. اللہ اللہ. نے کیا خوب کہا, واہ. نہ حلیمہ بید کھلا ہے یہ, نہ مقام چونو چرا ہے یہ. سبحان اللہ. نہ حلیمہ بید کھلا ہے یہ. اللہ اللہ. جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں رکھ کے دیکھا, ہائے ہائے. اپنی چھاتیاں منہ میں ڈال کے دیکھا, سبحان اللہ. سینے پہ لٹا کے دیکھا, کہا سادیا تیرے جیسا قرب کسی نے نہ پایا ہوگا, مجھے بتا کون تھے؟ اللہ اللہ. نہ حلیمہ بید کھلا ہے یہ, اللہ. نہ مقام چونو چرا ہے یہ. ہائے ہائے. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے, تیری بکریاں جو چرا گئے. سبحان اللہ. خدا سے پوچھ وہ کون تھے, تیری بکریاں جو چرا گئے. سبحان اللہ. شادیہ اللہ اللہ. حلیمہ زندگی کی ابتدائی منزل میں تو نے دیکھا, اور اے جبریل امی زندگی کی انتہائی منزلوں میں آپ نے دیکھا. اللہ اللہ. اے جبریل امی آپ سے پوچھتا ہوں, انہیں فرش پہ تو نے کیا دیکھا؟ سبحان اللہ. سدرے سے بڑے تو کیا پایا؟ مرحبا مرحبا. جبریل کی آنکھوں سے پوچھو, اللہ اللہ. اے چشم حقیقت بھی کہہ تو, سبحان اللہ. انہیں فرش پہ تو نے کیا دیکھا؟ اللہ اللہ. سدرے سے بڑے تو کیا پایا؟ سبحان اللہ. انہیں فرش پہ تو نے کیا دیکھا؟ اللہ اللہ. سرکاری دوار علیہ السلام کی بیعت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں انہیں فرش پہ تو نے کیا دیکھا؟ حق ہے. جب سویا ہوا جگایا تو ایسا لگتا تھا جیسا کہ بشر کوئی سو رہا ہوتا ہے, لیکن جیسا طلبے اپنے کے طلبوں پہ اپنا منہ بل کے دیکھا تو قیمت اپنی پتہ چلی کہ میرا مقام کیا ہے. اللہ اللہ. واہ واہ. سینہ کھول کے دیکھا, کلیجہ دل نکال کے دیکھا, تھال میں پڑا ہوا ہے دل, اور کوئی پریکاشنری میجر اٹیمپٹ نہیں کی گئی, اللہ اللہ. کوئی فارسی تدابیر عمل میں نہیں لائی گئی. وہ قلب والا وہ سامنے جلوہ فرمایا ہے, دل نکال کے سونے کے تھال میں رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. اب سمجھ آتی ہے کہ حرکت قلب مدار حیات ہے. اللہ اللہ. جب تک حرکت قلب رہے زندگی رہتی ہے, اور قلب کا بدن سے تعلق رہے تو بدن زندہ رہتا ہے. بدن وہ سامنے جلوہ فرما ہے اور قلب ادھر جلوہ فرما ہے. حق ہے. حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اس وقت کہنے والا کہتا
کہتا ہے اے چشمے حقیقت بھی کہہ تو اللہ اللہ انہیں فرش پہ تو نے کیا دیکھا سدرے سے بڑے تو کیا پایا سبحان اللہ سدرے سے بڑے تو کیا پایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری قبلہ مفکر اسلام پیر سید عبد القادر جیلانی سبحان اللہ سعدیہ تو نے بکریاں چراتا حق دیکھا ہے اللہ اللہ تو نے چاٹیوں سے منہ لگا کے دودھ پیتے دیکھا اللہ اللہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ سبحان اللہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ حق ہے اور جس کا نوکر بنے تو جبریل کہلاتا ہے بنی تو محمد کی دائی حلیمہ سبحان اللہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ اللہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ اللہ اللہ بنی تو محمد کی دائی سبحان اللہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ سعدی سبحان حلیمہ تم اللہ نے بڑا قرب پایا ہے تم نے بھی ابتدائی منزل دیکھی ہے وہاں سے زندگی شروع ہوتی ہوئی تو نے ملاحظہ کی ہے جبریل امین تم نے سدرۃ المنتہا سے آگے جاتے ہوئے دیکھا زمین پر بھی تم نے دیکھا سبحان اللہ 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 سینہ کھول کر کے بھی دیکھا قلب کو آب زمزم سے دھو کر کے بھی دیکھا کیا بے ہوش ہوئے اللہ ہیں ہرگز نہیں اللہ ہوش نہیں ہوئے سبحان اللہ اے چشم حقیقت بھی کہہ تو مرحبا جبریل کی آنکھوں سے پوچھو اللہ اے چشم حقیقت بھی کہہ تو سبحان اللہ فرش پہ تو نے کیا دیکھا اللہ اللہ سدرے سے بڑے تو کیا پایا کیا بات ہے بخاری شریف کا متن ذکر کرنے لگا تھا سنی سنائی بات نہیں کرتا پڑھائی نہیں بات پڑھتے وقت بھی اور قیمت پڑھانے کے وقت آدمی کو پتہ چلتا ہے بندے وہ جو 4-5 جگہ دورہ حدیث کیا ہوا ہے 4-5 ایم اے کیے ہوئے ہیں پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں اس وقت میرے اسٹوڈنٹ تھے اللہ اور میں ان کو پڑھا رہا ہوں کیا وہ صرفہ نہیں کرتے کہ یہ آدمی بوڑھا آدمی ہے اس کو جانے دو اللہ کہتے بات بتا کے آگے چلنا پڑے گا سبحان اللہ نبی پاک نے فرمایا ایوکم مثلی تم میں میرے جیسا کون ہے مجھے دیکھا میں کھاتا پیتا نہیں ہوں جیتا ہوں پھر اللہ کھاتا پیتا نہیں ہوں لڑتا ہوں پھر واہ واہ ہاں فاقہ رہتا ہوں صحت میں فرق نہیں آتا پھر بھی حق ہے میرے اندر کوئی مادی خوراک نہیں جاتی روٹی نہیں جاتی دودھ نہیں جاتا پانی نہیں جاتا فروٹ نہیں جاتا اس کے باوجود تم سب سے زیادہ تنومند ہو سبحان اللہ اب اگر تم کھانا پینا بند کرو تمہاری صحت جاتی ہے ایوکم اللہ سبحان تو اللہ میرے جیسا تم میں کون ہو سکتا ہے حق ہے صحابہ کرام حیرت سے دیکھنے لگے کہ ہماری طرح رہتے سہتے تو ہماری طرح ہیں واہ شادیاں ہماری طرح کی ہوئی ہیں واہ لیکن واہ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اسپیشل گیئر کون سا ہے جس کی وجہ سے ہم ان جیسے نہیں ابھی تو عند ربی یطعمنی و یسقینی سبحان میں اللہ ہر رات رب کی بارگاہ میں گزارتا ہوں سبحان اللہ معراج والی رات کا نام ہے معراج اللہ اللہ وہ ملاقات ہے نا واہ اس کا نام ہے نا معراج واہ واہ اگر ہر روز ملاقات ہوتی راتیں گزرتی ہیں خدا کے پاس تو پھر سبحان اللہ اس کا معنی ہے ہر روز میرا واہ واہ بات بلے پڑی نہیں پڑی بے شک جذباتی طور پر تو نہیں کہہ رہا ہوں نا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں سبحان اللہ ظفر آدمی اس کو لجانیے گا واہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا واہ خیر جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی سبحان اللہ اگر ناراضگی کے عالم میں بھی کہیں گے بات حق ہے حق ہے ہمیں پوچھو حق ہے ہم سے ثبوت مانگو سبحان اگر اللہ ثبوت پہ چھوٹے نکلے تو پھر ہماری خطا ہو سبحان ہمیں اللہ توبہ کرنی چاہیے اللہ سبحان اللہ اللہ آئی بات سمجھ میں ہر روز معراج ہے کہ نہیں بے شک سرکار مدے میں ہر رات اپنی پروردگار کی بار میں دعا میں گزارتا ہوں ہوتا کیا ہے یطعمنی وہ مجھے خود کھلاتا ہے سبحان اللہ آپ وہ وقت یاد کریں سبحان اللہ جب ماں کی گود میں تھے ماں چوریاں بنا کے منہ میں ڈالتی تھی پیار بھی کرتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ کھانا بھی کھلاتی تھی پیار بھی کرتی اور ماؤں کا احترام کرو ساتھیوں سبحان اللہ باپوں کی عزت کرو واہ واہ پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ مقبول دعا جو ہے والدین کی ہے اللہ اللہ کوئی پیر فقیر درویش قلندر
माँ और बाप की दुआ वाली कमी नहीं पूरी कर सकता। मेराज शरीफ का बयान है, सुनने के लिए आए वो है, ये बात बल्ले बांध लो। अल्लाह अल्लाह दाढ़ी रखने से कमी ये नहीं पूरी होगी, नमाजें पढ़ने से ये कमी पूरी नहीं होगी, अल्लाह अल्लाह आज एक की बजाय 10 कर दे ये पूरी नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह जिसके माँ बाप नाराज हों उस आदमी को अल्लाह की बारगाह में वो मुआवजा होगा कि कभी बच नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह सरकार ने फरमाया जिसकी माँ जिसको वो राजी कर सकता था जायज तौर पर नाराज है, बाप उसका हक रखता है नाराज होने का, इन्हें ज्यादती नहीं करता। माँ अपने हुदूद असलियत से तजावुज करके नाराज नहीं होती बल्कि उसके नाराज होने के हुकूक है उस मकाम पर। तो कहा जिसके माँ और बाप नाराज होंगे क़यामत के मैदान में मैं नहीं कहूंगा मेरा उम्मती, अल्लाह वो तो ऐसा मामला है कि नबियों की बात नहीं बनेगी जब तक सरकार सिफारिश न करे, अल्लाह अल्लाह जब तक सरकार शफाअत न करे। वाह वाह ये जिस तरह राम समझ लो ना, एक बार उसका असम्बली दे बेई गचो या कड़ी पासे परतने हो ना बड़ा माड़ी तवज्जो डाइवर्ट में तकरीर छोड़ दे। अल्लाह मैं डंगर चलाने का काम ना करना, बंदे पढ़ाने का काम करना। माशाअल्लाह अगर बेवक्त कोई आदमी से खुजले भी ना तो मेरी जिंदगी पर गिरान गुजरता है। अल्लाह अल्लाह आप इत्मीनान से जिस आप जाविये पर बैठना चाहते हैं ना इत्मीनान से बैठो। सुभान अल्लाह 66 वर्ष की उम्र का आदमी, अब देखो मैं बैठा हुआ हूँ, अब जितनी देर तकरीर कहूंगा इसलिए उठ के पहलू नहीं बदलूंगा। इतने लोग तकरीरें वगैरह करते पानी बार बार मांगते हैं, चाय मांगते हैं, तो मुझे देखा मेरा ये मिजाज नहीं है। सुभान मैं समझता हूँ जिस तरह के मेरे सुनने वाले बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हुए हैं और उनकी कोई बात आगे पीछे हो तो मुझे मेरी तवज्जो को नुकसान पहुंचता है, तो मुमकिन है उनके ख्यालात में जो तसलसल जा रहा है और उनको भी नुकसान पहुंचे। मैं कुछ तकरीर के दौरान खाता पीता नहीं हूँ, अपने लिए डिमांड करता हूँ लेकिन दूसरों को भी पे करता हूँ। मैं समझता हूँ ये भी मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, माशाअल्लाह इनकी बात इनके जज्बात और एहसासात का भी मुझे ध्यान करना चाहिए। मैं क्या अर्ज कर रहा था, सरकार फरमाते हैं कि मुझे रब खिलाता भी है रब पिलाता भी। खिलाने पिलाने का काम कौन करता है? माँ गोद में रखती है। अब ठीक है, सरकार को खिलाने पिलाने का काम मुझे और आपको, आपकी भी माने के मेरी भी माने के। और अगर बदकिस्मती से माँ मर गई है तो इस कमी को भी दुनिया में कोई नहीं पूरा। अल्लाह अल्लाह नानी हो, नानी 2 मरतबा माँ रखती है, इसलिए कि झगड़ा पड़ जाए गार्डियनशिप का, माँ मर जाए पाले कौन? नानी को अवलियत हासिल है। बाप खर्चा देने का पाबंद है, पालने का काम नानी करे। अल्लाह अल्लाह नानी 2 मरतबा माँ रखती, दादी करेगी, दादी 2 मरतबा माँ रखती। बाप के मुकाबले में दादी की शफकत ज्यादा होती है, इसीलिए कानून इशरा कहता है अगर बाप की गैर मौजूदगी में दादा किसी बेटी का रिश्ता दे दे, बाप नहीं मोतरज हो सकता। क्यों दिया? जब मैं मौजूद था, मेरी बेटी थी। अल्लाह अल्लाह कानून कहता है ये तेरा भी बाप है, तेरी बेटी का 2 मरतबा बाप वाह वाह है। इसलिए तू कोई काम करना चाहता है तो उससे पूछ के कर, अगर ये बिन पूछे भी करे तो वैलिड है। समझो कितने हुकूक हैं, हाँ? और आप खुद देखें, कभी आपने अपने बेटे को चांटा मारा होगा तो बाप ने उठ के बजाय इसके के आपको थपकी देकर बहुत अच्छा काम किया है, उठ के पोते को उठा के गले से लगा लिया होगा, 2-4 गालियां आपको सुना दी होंगी, 2-4 धक्के आपको दे दिए होंगे। क्यों मारता है? ये मोहब्बत का मिजाज है कि पोतियां पोते नवासियां नवासे ज्यादा अच्छे लगते हैं, ये फितरत का निजाम है, इसलिए उनके हकूक को ज्यादा बरतरी हासिल है। तो सरकार ने फरमाया मेरी माँ तो मुझे बड़ी जल्दी दुनिया से चली गई थी, मैं 6 बरस की उम्र का था, तो वो परवरदिगार मोहब्बत के सारे तकाजे रब पूरे करता है। ये देवो नहीं, रब मुझे खुद खिलाता है, वो यकीनी मुझे खुद पिलाता है। अब जिसकी रात भी और खाना पीना रोजाना रब के पास हो, महराज किस बात का नाम है? रोजाना महराज हुई कि नहीं हुई? और फिर रात का किस्सा और है, सरकार फरमाते ली मा अल्लाह वक्तुन ला यसउनी फीहि मलकुम मुकर्रबुन वला नबियुम मुरसलुन। रब की बारगाह में मुझे एक ऐसा वक्त हासिल है जिसमें कोई नबी नहीं आ सकता, कोई रसूल नहीं आ सकता। ये वक्त रात में या दिन? कहा इसमें रात दिन की कोई पाबंदी नहीं। इसका मतलब सरकार की महराज की एग्जिस्टेंस रात को भी हो सकती है, दिन को भी हो सकती है, इमरजेंसी किसी वक्त भी हो सकती है, लेकिन रेगुलरली रात को रोजाना होती है। अब अगर रात को रोजाना महराज होती थी तो इस महराज का खास तौर पर क्यों जिक्र किया? वाह वाह ये बात ख्याल में आ रही है? बेशक ये राज अर्ज करते हैं। वाह जिस वक्त बेटे की मंगनी होती है ना, वो दिन भी खुशी का होता है। माँ उस दिन भी घर की आराइश पैराइश करती है, अपनी सहेलियों को बुलाती है, बच्चे के दोस्तों को बुलाती है, मियाँ के दोस्तों को बुलाती है और मियाँ की बहनों को बुलाती है और खुशी मनाती है कि आज मेरे बेटे की मंगनी है।
उस दिन भी रौनक बड़ी खासी होती है। और एक दिन ऐसा होता है कि पूरे जितना उनका हल्का अशनाई होता है सबको बुलाते हैं और जितना उन्हें तवानाई होती है पूरी खर्च करते हैं। अल्लाह अल्लाह। आज एक तो ये खुशी मनानी है कि आज दुल्हन को घर लाना है, हाँ, और दूसरा ये कि लोगों को बेटे की शान दिखलानी है। जब दुल्हन बन के आई है उसके लिए एक यादगार कायम करनी है कि कयामत तक जब तक वो जिंदा रहे महसूस करे कि मेरे सास ससुर ने वाकई मेरी शादी के मौका पर बड़ा खुशी का इजहार किया था। अब मंगनी तो जिस तारीख हुई इजाबो कबूल बसा औकात निकाह भी उस तारीख हो जाता है, तो जो असल शादी है वो तो निकाह का नाम है, वो तो हो गई हुई है, ये बाद में क्यों का शरीका वीजा ले लो के अल्लाह, बिलादरी है। वाह वाह, क्या बात है। चौं पहना पुरानी मुंह कटने जो गहरी नहीं वाह, कहा ओ मेरे मुस्तफा तेरी बरादरी अंबिया है, तेरे आशनाई के हल्के जिब्रील अमी हैं, आसमानों के कुदसी हैं, आलमे अरवाह की बस्तियां हैं, आलमे बरज़ख के बाशिंदे हैं, और जन्नत की हूरें हैं और दोज़ख के दारोगे हैं। आप जब शादियां करते हैं तो जेल सुप्रिटेंडेंट को भी बुला लेते हैं, इस मतलब ये नहीं कि आप जेल को दावत दे रहे हैं, आप हाकिम को दावत देते हैं, हर तबके के दानश्वरों को, पढ़े लिखे लोगों को, हाकिमों को आप अपना वेट जाहिर करते हैं। और फिर साथ ये कि जिन पर वेट, जिनके जरिए से वेट जाहिर करते हैं उन पर भी वेट जाहिर करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम मेराज तुझे भी कराई है, तुझे याद होगा, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबली सुभान अल्लाह, जअलहु दक्कन व खर्र मूसा साइक़ा। सुभान अल्लाह। जब तजल्ली तूर पर पड़ी तो तूर की धज्जियां निकल गई, एक चमक पई कोहे तूर उत्ते। अब पंजाबी वाली एक चमक पई कोहे तूर उत्ते, उड़ गई कोहे तूर दी। सुभान अल्लाह। जोरे कलाम है कि नहीं? क्या एक चमक पई कोहे तूर उत्ते, उड़ गई कोहे तूर दी। क्या अंदाज है जी, वाह सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात? करी अल्लाह अल्लाह। मेराज वो भी थी। ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम्हें भी याद होगा, वकज़ालिका नूरी इब्राहीमा सुभान अल्लाह, मलकूतस समावाति वल अर्द अल्लाह अल्लाह, वलियकून मिनल मूक़िनीन। सुभान अल्लाह। हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसी तरीके से जमीनों आसमानों के वो इलाके जो आम आंखों से देखे नहीं जा सकते और नाक से सूंघे नहीं जा सकते, जुबान से चखे नहीं जा सकते, कान से सुने नहीं जा सकते, हाथ से छुए नहीं जा सकते, उनकी ज़ियारत कराई। अल्लाह अल्लाह। और उस हालत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में लिखते हैं हज़रत हज़रत पानीपती तफसीर मज़ारी के अंदर 1250 सने हिजरी आपका समय वफात है। उस किताब के अंदर तफसीर मज़ारी के अंदर लिखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक जोड़े को बदी करते देखा, बदकारी करते देखा, तो आपने कहा मौला करीम इनको हलाक कर दे। वो जोड़ा वहीं बदी करते करते हलाक हो गया। अल्लाह अल्लाह। दूसरे को उसी हालत में देखा, उसके लिए बदुआ फरमान, वो हलाक हो गया। लफ्ज़ बदुआ से तौबा करता हूँ, रुजू करता हूँ, नबियों के कलमे के हक में किसी लफ्ज़ के बारे में बद का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना। अल्लाह अल्लाह। दुआए ज़रूर फरमाई। वाह वाह। अगरचे मुहद्दिसीन बदुआ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एहतियात इसमें है कि नबी की जो दुआए ज़रूर है, बदुआ का लफ्ज़ और लोगों के लिए, अल्लाह नबी के लिए ये नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए दुआए ज़रूर। सुभान अल्लाह। तीसरे जोड़े को इस हालत में देखा, उसके लिए आपने दुआए ज़रूर फरमाई, वो हलाक हो गया। जब चौथे को देखा तो आप दुआए ज़रूर फरमाने लगे, इनको भी हलाक कर दे। सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने फरमाया अरिद अन हाज़ा या इब्राहीम। सुभान अल्लाह। ऐ इब्राहिम इस बात से टल जा। अल्लाह अल्लाह। हैं? अल्लाह अल्लाह। अपने इलाका मुल्का देसना पता है ना, जिले जिरगे लोग इसने ना, वाह, जिला पता ना फलाना दोस्त बड़ा जिरगा इसना राती के छिपे लगा दोस्ता तू नाच, मैं गल मननी नहीं आ, तब तू आया तो फिर मैं मजबूर हो गया सा, सुभान अल्लाह। तो तू नाच। वाह वाह। एक गल होनी नहीं होनी, बेशक। असा जटा ने पी रहा राजन शाह चौधरी शाह जी कुछ इलाके, क्या बात है। मटोरी ईश्वरी आया सा मिली ना, जब कोई ये गल पई किसे ना कि राती इसी असा दरवाजा खटखटाने पीरो तो था नाच। अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। रब्बे करीम ने जब देखा, जितनी बार कहा हलाक फरमा, हलाक कर दिया, लेकिन जिस वक्त मानने की सलाह नहीं थी ना, तो दुआ फरमाने से पहले कहा इब्राहिम टल जाए इस बात से। वाह वाह। है सुभान मतलब निकला, ऐ इब्राहिम तुझे भी मेराज कराई,
और तुमने जमीनों व आसमानों के में होने वाले गुनाह देख लिए। अब महबूब किबरिया की बारी आई, हक है। गुनाह पर सजदा रेज़ हैं। अल्लाह अल्लाह। उस जगह अपनी उम्मत को गुनाहों में मुब्तला देखा और कहा मौला करीम ये जो मेरे उम्मती हैं, मैं ये नहीं कहता बेगुनाह हैं, गुनहगार हैं, अगर गुनहगार को भी तू बख्श दे तेरा क्या जाता। हक है। सुभान अल्लाह। नहीं कहता ये गुनहगार नहीं सुभान अल्लाह। है, गुनहगार हैं, पर तू कर्म करे तेरा क्या जाता है। वाह, वाह। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, सुभान अल्लाह। तेरे फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय सुभान नहीं अल्लाह। वो जो तुझ पे आया नहीं, सुभान अल्लाह। नहीं वो जो तुझ पे आया सुभान अल्लाह। नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, इब्ला मुफक्किर इस्लाम। माशाअल्लाह। काल की बात हो रही है, शौकों शौकों से हक है। प्यार के साथ, ताकि आपका प्यार भी रिकॉर्ड हो, अदाएं भी रिकॉर्ड हाय, हो। हाय। क्या बात है जी, वाह। सुभान अल्लाह। मलकूत तो मुल्क में कोई शय अल्लाह अल्लाह। नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, नहीं वो जो तुझ पे आया वाह नहीं, सैयदी वाह। नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। सुभान अल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गुनहगारों को गुनाह करते हुए पाया तो दुआए हलाकत फरमाई। अल्लाह अल्लाह। सरकार ने गुनहगारों को देखा तो दुआए शुफात फरमाई। अल्लाह करीम तो इनका बेड़ा पार कर दे, इस गुनाह से इन्हें बचा ले, इस गुनाह के होते हुए माफ फरमा दे। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दरे फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। सुभान क़यामत का मैदान होगा, सुभान अल्लाह। मदीने वाली सरकार ने चुका पहना हुआ होगा, अल्लाह। और ताज ज़ेब सर फरमाया हुआ होगा, हक है। गाते हुए गेसों के साथ हक है। शौक से तशरीफ ला रहे होंगे। मेरे जैसे गुनहगार सरकार की बारगाह के कुत्ते सरकार का रास्ता घेर के कहेंगे, अल्लाह। सुभान ओ अल्लाह। दिलदार कमंदा वालड़िया, हक है। कूड़े ने ना वालड़िया, सुभान अल्लाह। ओ दिलदार कमंदा अल्लाह अल्लाह। वालड़िया, अल्लाह। कूड़े ने ना वालड़िया, अल्लाह। मेरा किबला तू, मेरा काबा तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, सुभान अल्लाह। मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, सुभान मेरा अल्लाह। दीन भी तू, ईमान भी तू। सुभान अल्लाह। इजना को गड़बड़ करना उस कहते हमारे को लगा ऐसी बात है, आपको डंडा न चलाओ, गड़बड़। मेरा किबला तू, मेरा काबा तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। गुलाम हुसैन आगे आ जा, आगे आ जा थोड़ा। सुभान अल्लाह। मेरा किबला तू, मेरा काबा तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐ इब्राहिम मेराज तुझे भी कराई, ईसा अलैहिस्सलाम फल के चारों पर बुलाकर मेराज तुझे भी कराई, और मेराज के से पीछे कदर वाले फिर रहे हैं और तुझे सैर कराई जा रही है। अल्लाह। आज तुझे दिखाएं, आज सुभान मेराजें अल्लाह। तो रोज होती है, आज डिस्प्ले करते हैं। अल्लाह अल्लाह। जमीन वाले अलग देखें, आसमान वाले अलग देखें। वाह, वाह। जमीन वालों को पता चले कि हम में इस जैसा कोई नहीं, वाह, वाह। आसमान वालों को पता चले इस जैसा कोई नहीं, नबियों को पता चले इस जैसा कोई नहीं, रसूलों को पता चले इस जैसा कोई नहीं, जिन्नों को पता चले इस जैसा कोई नहीं। आगे मेरे और उसके दरमियान दीदार के रिश्ते हैं। सुभान आज डिस्प्ले करना चाहते अल्लाह। हैं, आज शो करना चाहते हैं। हक है। हाँ महबूब अपने घर नहीं सोना का क्यों नहीं? अल्लाह अल्लाह। इस वजह से कि अगर जिब्रील अमीन आएगा या दरवाजा खटखटाएगा, कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अल्लाह। अक्सरुहुम ला याक़िलून। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उन रसों जो नागे कीते नुकसान अपना कीते। क्या बात है। मरहबा जी, मरहबा। सुभान अल्लाह। और संगियो हक नागे है। करने ने ईमान नाल दसो होए सुभान अल्लाह। कुछ ऐसी चीज़ नहीं जी लज़्ज़त लगी है जेडी आज पे इसनी नहीं भी नहीं। है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह।
ये चीज ही अलग है। अल्लाह अल्लाह दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों का इंतखाब है। सरकार से दूर हटना इंतहाई गुमज़ैल आदमी की निशानी है। बेशक कदा कुछ अकल वाले बंदे की पैसे दो ना ठिकाने लासी तो कुछ बेवकूफ है बेमगजे की तो मतलब कलर चौका पकौड़ियां खा दी। अल्लाह अल्लाह सरकार की जात ज़हीन लोगों का इंतखाब है, घटिया लोगों का इंतखाब नहीं है। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम को कहा अपने घर नहीं सोना का क्यों, जिब्रील आएगा तो इससे दरवाजा खटखटाएगा। कुरान मजीद ने कहा तो तेरा दरवाजा खटखटाने वाले जाहिल है। दूसरा दरवाजा ना खटखटाए जिब्रील है, बदनी लतीफ रखता है, शक्ल बॉडी रखता है, आते जाते वक्त दिक्कत नहीं होती, वो बगैर दरवाजा बनाने के वैसे ही अंदर जा सकता है। कुरान मजीद ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी अल्लाह इल्ला अय्युज़न लकुम। सुभान अल्लाह। कोई भी कलिमा पढ़ने वाला जो अपने आप को ईमानदार समझता है, मेरे महबूब के घर में बगैर इजाजत के दाखिल होने का मुजाज नहीं। बेशक एक मौका में गालिबन खाने वाले में तकरीर कर रहा हूँ तो मुझे किसी ने कहा कि आयत पढ़ी है मोमिनों के बारे में तो सबूत पेश करना चाहते हैं जिब्रील के बारे में। मैंने कहा ईमान एक ऐसी कुल्ली है जिसके अफराद में से जुजियात में से जिब्रील अमीन भी एक जुजी है। तुम जिब्रील अमीन को माज़ल्ला सुमरिया मिला ईमानदारों की सबसे बाहर निकालना चाहते हो, कोई ईमान नहीं लाए। वाह वाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा वो ईमान वालों, वाह वाह तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं जब मांगो खुद न कहे। तरीके दो ही हैं, या दरवाजा खटखटाए या बगैर इजाजत के अंदर जाए। अब क्या करें, कहा जाके उम्मे हानी के घर में सो जा कि पता चले महबूब की बारगाह में जिब्रील भी बगैर इजाजत के आ नहीं सकते। वाह वाह बे इजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं। सुभान अल्लाह। बे इजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं, और आंख वाले जानते हैं अदरो शाने आले बैत। अल्लाह फरमाते हजरत उम्मे हानी जो हजरत हैदर करार की शीरा साहबा थी उनके मकान में जाके सोए। जिब्रील अमीन को हुआ छत फाड़ क्या अल्लाह अल्लाह। वो दरवाजा, अब वो सरकार का दरवाजा तो नहीं था, वो खटखटा के आ सकते थे। कहा नहीं, करना वो काम है जो किसी के साथ अल्लाह सलूक वो करना है जो दुनिया में मैचलेस हो। सुभान अल्लाह। छत फाड़ो मगर ऐसा आर्किटेक्चर इस्तेमाल करना है कि मिट्टी ना गिरे। अल्लाह अल्लाह। वाह 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 हाँ जी, वाह वाह। सुराख इस तरह निकालना कि मिट्टी ना गिरे। और फिर करना क्या है, जगाना, कहा नहीं जगाना नहीं। वाह वाह। क्या करूं, कहा जाके नबी पाक अलैहिस्सलाम के पांव के तलवों पर अपना चेहरा रख लो। सुभान अल्लाह। सुभान ये अल्लाह। चेहरा तो वो है जो अल्लाह की बारगाह में सर सिजदे में गिरता है। अल्लाह अल्लाह। सर सिजदे में रखते वक्त ये गिरता है। ये क्या मामला है कि ये आज पांव के तलवों पर रगड़ा जा रहा है। इस जगह इमाम राज़ी बड़े खुले हाथों से लगा। अब क्या है? वो कहते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने भी सजदा हुआ, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा का कोई सबूत नहीं। कहते ये सजदे का सबूत नहीं है। वाह वाह वाह। वहां सारे फरिश्तों को हुक्म हुआ, यहाँ फरिश्तों के इमाम को हुआ। सुभान अल्लाह। इमाम की ना होती हो तो मुक्तदी की नहीं होती। नहीं होती। सुभान अल्लाह। बेशक इमाम की ना होती हो तो मुक्तदी की नहीं होती। बेशक। अगर इमाम की हो जाए तो फिर जितनी खरी इमाम की होती है उतनी खरी मुक्तदी की। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। इसलिए लोग अच्छा आदमी देख के उसके पीछे जाके पढ़ते। सुभान अल्लाह। बंदा सच्चा हो, अकीदे का सुच्चा हो, सुभान अल्लाह। अखलाक का पाकीज़ा हो, वाह वाह। जिंदगी का सुथरा आदमी हो। वाह वाह। इसी वजह से सारे नबियों ने सरकार के पीछे नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह। हम सारे नबी और रसूल जरूर हैं मगर महबूब नहीं है। महबूब के पीछे पढ़े ताकि महबूबियत का असर। वाह वाह। ऐ बजाई दूध लेना किसी लोग पेंडे मारी दी चंगियां बंदे को बैत होना। वाह वाह। सुभान अल्लाह। मुजिया को बैत हो तो गाजी नहीं बनना। वाह जी वाह। गुरु जिन्होंने पदने दी चेले भी टरकाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या बात है। खुदा के नाम का एक पैसा मांग लो तो पीर साहब के पेट में भी दर्द, मौलवी साहब के पेट में भी दर्द। पैसे के मुक्तदी और मुरीद होंगे तो क्या करेंगे। वाह। हाँ? क्या बात। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन
तुम ऐसा करो कि तुम जाके चेहरा रगड़ो ताकि ये रिप्लेसमेंट हो सजदे की। सुभान लेकिन अल्लाह। फर्क क्या, इस जगह इमाम राजी खूब खूबसूरती से बहस करते हैं। वाह वाह। कहते हैं वहां सजदा सारे मलाइका को करने का मौका मिला, यहाँ सबको मौका नहीं मिला, उनके इमाम को मौका मिला। वाह 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 वाह। वो सजदा रब की मर्जी से शुरू होके रब की मर्जी पर खत्म हुआ। ये सजदा जो सरकार के सामने हुआ रब की मर्जी से शुरू हुआ, रब के यार की मर्जी से। अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर वो सजदा फरिश्तों ने कहा था कि मौला करीम तू उसको पैदा करके जो बड़ा झगड़ालू, बड़ा खूंरेज है, बड़ा फसादी है, ये कहा था ना। तो उसके मुकाबले में परवरदिगार आलम ने उनको कहा कि जिसको फसादी कहते थे उसके सामने सजदा करो। वो बतौर सजा के था और ये सजदा बतौर अता के है। जिब्रील अमीन चेहरा रगड़ने से पहले और कीमत के थे, हक है। अब चेहरा रगड़ने के बाद आसमानों की दुनिया पर उनके रंग में तब्दीली आ गई। हक है। सुभान अल्लाह। फिर जितनी देर रगड़ते रहे, आज सजदों की हाँ, 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 वाह। इंतहा कर दूं, सुभान अल्लाह। शौक मिट जाए या जबी न रहे। सुभान आज तो अल्लाह। दिल चाहता है ये सजदा खत्म ही हो सरकार का। वाह वाह। क्या किस्सा है। वाह वाह। आप 17,000 मलाइका बाहर खड़े हैं। यार सरकार को महराज कराए जाने वाली है, तो महराज कराए जाते वक्त सरकार की बरादरी को बुलाना चाहिए। अल्लाह। तो बरादरी जब आपको पहचान ही नहीं सके तो ऐसे लोग बराती भी नहीं होने चाहिए। वाह वाह। क्या बात है जी, वाह। कि जिनकी हलवा खाना ना सुनाना ना कि खिलाना ही नहीं चाहिए। ये पहचान ही नहीं सके, इनको इसमें दावत देने की क्या बात है। दावत तो उनको देंगे जो इनको अप्रिशिएट कर सकते हैं किसी हद तक। भाई पहचान तो सही मानो में कोई भी नहीं सका मखलूक में, सिवाय खुदा के जाते बारी के बगैर कोई भी पहचान नहीं सका। सरकार की हदीस है, हजरत सिद्दीक अकबर को मुखातब करके फरमाया, या अबा बकरिन लम युदरिकनी हकीकतन गैर रब्बी, मेरे अल्लाह के बगैर मुझे कोई पहचान सके नहीं। न कोई फरिश्ता पहचान सका, न नबी पहचान सके, न रसूल पहचान सके, न सहाबा पहचान सके, न तुम पहचान सके, न मेरी बीवी पहचान। सुभान अल्लाह। बेशक। मुझे पहचाना तो जाते बारी ने। इसीलिए सरकार के बारे में अकीदा क्या, सरकार मुतशाबिहात में से वाह। ये अकीदा के पहचान ही नहीं सके। सुभान अल्लाह। असल हकीकत सरकार की दरियाफ्त थी उसमें। ये अकीदा सरकार। बेशक। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम की तैयारी होने लगी है, तो 70,000 मलाइका बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं। अब क्या करना चाहिए? कहा आपको आप ज़मज़म पे ले जाके गुस्ल कराना चाहता हूँ। कहा चले गए, लेकिन गुस्ल कैसा? आपका सीना मुबारक फाड़ के आपका हट बाहर निकालो। अल्लाह। चलो ठीक है, फाड़ा हट बाहर निकाला, सोने के थाल रखा। अल्लाह। ये एक बहस है। जनाब सोना मर्द के लिए हराम है, तो ये सरकार के लिए सोना क्यों इस्तेमाल हो रहा है? सवाल समझ में नहीं आ रहा। सुभान अल्लाह। हमसे मुझसे को पूछे शाह साहब एक मर्द सोने की मुश्तरी पहनना चाहता है, मैं कहता हूँ ये हराम है मर्द के लिए। वो ना कहे बेगम को बना दे, ऐसी 2 मुश्तरियां बेगम को बना के दे दे। जेड़े जने बीवियां जेवर बेची दिखाने वाले उन्हें की जने ने मिलाद बुलाई सफा में जने को जगह खाली कोई नहीं। रोजाना लोग मुस्तगीस इसने ये माला खान वाला जेवर चोरियां बेची खाई डरना पुत्र वलायत अच्छी तभी तो आला काम हुआ है पाकिस्तान करना से अजी बड़ा चुल्लू कोना है भाई बोटी ने सामने बंदा गाटा दिमाग कर कराया। वाह। वो 2 रुपये मांगे तो 4 दे। दूध शरीर ने लिहाज रख दे खाने पीने को खा पी। वाह। ओला सोना जरूरत है ना 5 तो लेके देना। वैसे बीवियां नहीं तरह इज्जत ना रहो, पर्दे विच रहो। जिस शराफानी हथियां पैना अपने वक्तां च नहीं है ना, उन्हें हदूद ना ख्याल रख ते चंगी तरह खा ते चंगी तरह पी। मैं भावें दिहाड़ी टुकड़ी टोसा ना, लेकिन तू ही कुछ रख सा। अल्लाह। चोरियां से जेवर बेची दिखाने वाले जने नहीं समझने जने उन्हें क्या पता जे चोरों खड़े जाके ले बंदा। क्या बात है। जब सोना मर्द के लिए हराम है तो सरकार के लिए सोने का थाल क्यों लाया गया? इस पर कहते हैं सोने का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है, सरकार ने तो नहीं इस्तेमाल किया, जिब्रील ने किया। जिब्रील पर मर्द का इतलाक नहीं आता, मर्द का लफ्ज़ जिब्रील पर नहीं बोला जाता। एक जवाब। दूसरा जवाब यह है कि सोना आकर के मदीने शरीफ हराम हुआ और बहराज वाक़या मक्के शरीफ का। सोना मुमकिन है इसीलिए मर्द के लिए हराम हुआ हो कि मेरे महबूब के इस्तेमाल में
آیا ہے، اگر کسی اور کو بھی حق دے دیا جائے کہ میں بھی محمد کی طرح ہوں۔ اللہ اللہ نے کہا وہ جو چیزیں محبوب کے امتیاز کے لیے استعمال کی ہے نا وہ لوگوں کو اجازت نہیں ہوگی آج کے بعد حرام ہے۔ دوسرا جواب، سبحان اللہ۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر سب چیز کسی کے لیے حرام ہو، مطلب 4 سے زیادہ بیویاں کرے گی، اگر کو بات کرنی ہے تو لکھ کے دے دے، اس کا میں جواب دیا۔ ارے کوئی بات نہیں۔ ہاں تو عرض خدمت یہ ہے، تیسرا جواب یہ ہے کہ جو چیزیں سب کے لیے حرام ہوں، ایسا ممکن ہے کہ نبی کے امتیاز کی وجہ سے وہ حرام نہ ہو۔ جیسا 4 سے زیادہ بیویاں ایک وقت میں رکھنی حرام ہیں، مگر سرکار کی ایک وقت میں 9 بیویاں ہیں، یہ سرکار کی اسپیشلٹیز ہیں، سبحان اللہ سرکار کی خصوصیت ہے۔ اس کے بعد یہ سوال ہے کہ اور کوئی دھات کیوں نہیں استعمال کر لی؟ کا اصل بات یہ، اس وقت میں جتنی دھاتیں دریافت ہوئی تھی سب سے زیادہ قیمتی سونا تھا، اور سب سے زیادہ قیمتی ہارٹ سرکار کا تھا۔ جو سب سے اعلیٰ دل ہے وہ سب سے اعلیٰ دھات میں رکھ کے دھوئیں گے تاکہ اس کی شان اور عظمت کا حق مد نظر رہے اور اس کا امتیاز قائم رہے۔ اللہ اللہ اور مناسبت کیا ہے؟ اور مناسبت یہ ہے کہ سونے کو آپ زمین میں دفن کر دیں، 1000 برس کے بعد نکالیں، لوہا اپنا وزن چھوڑ جائے گا، پیتل کو مٹی کھا جائے گی، اور دھاتوں کو زمین کھاتی ہے، لیکن سونے کو زمین نہیں کھا سکتی۔ جو وقت گزرتا چلا جائے گا تو سونے کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ اس کو باہر نکال کے کبھی اس کے اوپر کی مٹی اتاریں، چمک اس کی ذات کے اندر موجود ہے، اور سونا خود چمک کے بتا دے گا کہ دھاتیں اپنی چمک میں میری محتاج ہیں، اور میں اپنی چمک میں کسی دوسری دھات کا محتاج نہیں۔ کا دل بھی وہ دل ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سبحان اللہ دل بھی چمکانے والے۔ سبحان اللہ سبحان حضور تھے حضور تھے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سب کو روشنی بخشنے والا ہے، تو جو سب کو روشنی بخشنے والا دل ہے اس کو اس دھات میں رکھا گیا جو سب دھاتوں کو چمک عطا کرتا۔ اور 100 برس کے بعد سونا نکالے تولے پورا، سرکار کے دل کو بھی زمین میں چھوڑ دیا گیا، قیامت میں اٹھے گا تو پورا۔ یہ مناسبت۔ اب جناب جوڑا کہاں ہے، کون سا جوڑا لائے ہو؟ کہا یہ جنت سے جوڑا لائے، دستار جنت سے لائے ہیں، چوکا جنت سے لائے ہیں، سواری جنت سے لائے ہیں، براتی جنت سے آئے ہیں۔ اب جب سرکار اپنے لباس کو راز کر کے بیٹھتے ہیں نا اوپر براق کے، اس وقت مجھے یہ کہنے کا حق دے دیجئے، او دلدار کمنداں والڑیا او گوڑے نینا والڑیا، میرا قبلہ تو، میرا کعبہ تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی 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 تو۔ ادھر جبریل امین کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا کہاں اتنا موقع ملنا تھا، سرکار کا دل میں نے نکالنا تھا، اس کو دوبارہ میں اپنی جگہ رکھنا تھا، کوئی وقت مل گیا ہے نا، تو چلو اچھی طرح سے کو یوٹیلائز کرو۔ اللہ اللہ ادھر آپ نے کہا لائلن رات کے تھوڑے سے حصے میں اور تھوڑا خرچ کرنا ہے۔ سبحان اللہ چاند تو جہاں ہے وہیں رک جا، اور سورج تو جہاں ہے وہیں رک جا، یہ سوئیاں دونوں تھی وقت ماپنے والی، اللہ ان دونوں گھڑیوں کو بند کر دو، اب جتنا دل چاہتا ہے وقت لگاؤ۔ سبحان اللہ آج محبوب مل گیا ہے، اچھی طرح سے یار کو غسل کے بہانے سے ٹھہرائے رکھو۔ نبی پاک علیہ السلام کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ادھر انبیاء علیہ السلام بیت المقدس کی دیوار سے ایڑیاں اٹھا اٹھا کر کے زبان حال سے کہتے ہیں کہ آوی آوی کوئی ناچر لاوی، سبحان اللہ آوی آوی کوئی ناچر لاوی، سبحان اللہ رسی چاہت حسن اللہ دی، سبحان اللہ آئے نی پور محمد بخش، سبحان اللہ کر کے آس سبحان اللہ دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
मुफक्किर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर जीलानी। अल्लाह यार है जिब्रील अमीन आसमानों का चीफ मिनिस्टर हाथ में लोटा लिए हुए सरकार को वज़ू कराया, सबकी गर्दनें तोड़ने वाला फरिश्ता सरकार के घोड़े की रकाब थामे हुए। जनाब इसराफील ने सरकार के घोड़े की लगाम पकड़ी और जनाब इसराफील जनाब मिकाईल आपको उठा करके बुराक पर सवार करना चाहते हैं। अब ये चारों आसमानों के चीफ मिनिस्टर्स अपने अपने हल्के के अपने आसमानों की जो सूबाई निजाम है उसके चीफ मिनिस्टर और सबका चीफ मिनिस्टर जो है वज़ीर आज़म आसमान का वो जिब्रील अमीन है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के घोड़े की के गिरदा गिर्द कोई रकाब थामे हुए, कोई लगाम पकड़े हुए, कोई लोटा उठाए हुए, कोई वज़ू करा रहा है तो उठा के अब जब बुराक पर सवार किया, बुराक अरबी जुबान में बर्क से बर्क कहते हैं बिजली को। अब बिजली की रफ्तार आपको पता है कितनी है? ये तो आप इस मुल्क में रहते हैं, बच्चे भी जानते हैं, ख़वातीन भी जानते होता ना, टीवी पे उसका एडवर्टाइजमेंट होती है, बड़ा शोर शार होता है। लेकिन बुराक क्यों? बुराक बर्क से मुश्ताक है, अरबी जुबान में कायदा है रूफ उस वक्त बढ़ाए जाते हैं जब माने बढ़ जाए, माने की बढ़ोतरी मकसूद हो तो रूफ ज्यादा किए जाया करते हैं। तो इसका मतलब यह बर्क का लफ्ज उस माने की अदायगी नहीं कर सकता जो माना मतलूब थे, तो उन मानों की अदायगी के लिए बर्क की जगह बुराक लाया गया। मतलब बर्क की वो रफ्तार नहीं है जो बुराक की रफ्तार है। सुभान अल्लाह। जितने लोग कहते हैं हम सरकार जैसे हैं, राजेश इस्लाम बनाओ है ऐसा तार नंगी करीन है साले के ऊपर ये तुम्हारे पिछले 20 साल ने कमाई एक क्या बात है, पता चल जाएगा कि नहीं? नहीं पता चलेगा सरकार जैसा है कि नहीं। सरकार बर्क पर सवार नहीं, बुराक पर सवार है। सुभान अल्लाह। ये बर्क है जो जा रही है ना, ये जो आपको रोशनी दे रही है इसका नाम है बर्क। इन गितारों को नंगा करके हाथ लगाओ कि मिसल होने का पता चले। सरकार बर्क पर सवार नहीं, बुराक पर सवार है। और नीचे भी नूर, आगे भी नूर, पीछे भी नूर, दाएं भी नूर, बाएं भी नूर, सरकार नूरुन अला नूर। अब सरकार की सवारी जा रही है। और मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, सरकार फरमाते हैं मररतु अला कब्र मूसा इंदा कसीबिल अहमर व हुवा काइम युसल्ली फी कब्रिही। सुभान अल्लाह। मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा जो सुर्ख टीले के पास है, तो मैंने देखा वो खड़े कब्र में नमाज पढ़ रहे। इस मौके पर चंद मसाइल हैं जो आपको हल करने होंगे। सबसे पहली बात यह कि यहूदी कहते हैं हमें मूसा अलैहिस्सलाम की खबर पता नहीं चल सकी। अच्छा, जिनके वो नबी और रसूल हैं उनको अगर पता नहीं चल सकी तो गैब तो हुई बेशक। अगर उस मजहब के लोगों को पता नहीं चल सकी तो सरकार को पता चल गई तो सरकार का इम्तिहान तो है बेशक। दिन न होने की वजह से सूरज की रोशनी नहीं, 27वीं रात होने की वजह से चांद की चांदनी नहीं। अल्लाह अल्लाह। तो अंधेरी रात में यह किसने पता चल गया कि ये टीला सुर्ख है? कई बारी दूसरे ने गड्डियां दबी दरी टुरी बने हो यार बिजली की रोशनी नहीं रंग नहीं पता रहा वो नंबर ही तकी कि यार अल्लाह ने बंदिया रोशनी होने के बावजूद रंग की तमीज नहीं होती, तो अंधेरे में रंग की किसने तमीज हो गई? सुभान अल्लाह। मालूम हुआ कि लोगों की आंखें चांदनी की मोहताज हैं लेकिन सरकार की आंख अल्लाह। वाह वाह। दिन में तुम्ही से है रोशनी, शब में तुम्ही से है चांदनी। सुभान अल्लाह। दिन में तुम्ही से है रोशनी, शब में तुम्ही से है चांदनी। सच तो ये है कि रूह यार अल्लाह अल्लाह, शम्स भी है कमर भी है। अल्लाह अल्लाह। सच तो ये है कि रूह यार अल्लाह अल्लाह, शम्स भी है कमर भी। सच है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उसका सुखाना पहचान लिया कि नहीं? वाह। जो कब्र के अंदर से लेकर ऊपर तक जो मिट्टी होती है उसका इतना वॉल्यूम होता है कि निगाह के पार होने का कोई चांस नहीं होता। ये दीवार है, इसका वॉल्यूम कब्र की मिट्टी के मुकाबले में कम है। तो यहाँ बैठे हुए दीवार के परे जो खड़ा है उसको मैं देख सकता हूँ? नहीं देखा जा सकता ना। तो फिर जो दीवार के परे
देखने का के बारे में समझता है कि नहीं देखा जा सकता, वो जरा इस पर गौर करे जहां ऊपर इससे 4, 6 गुना 8 गुना ज्यादा हुजम की मट्टी पड़ी हुई है, उसको ये क्या पता चल गया कि अंदर कौन है? अगर वो गैब नहीं जानता, कब्रों का हाल उसे पता नहीं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सुभान अल्लाह, जरा खत्म तो ना भी पढ़ लें अल्लाह, ये तकरीर ही अब जो अभी कार्रवाई नजर ले आता। क्या बात। मैं ये पूछता जिस मजहब के वो पेशवा हैं उनको उनकी कब्र पता नहीं, सरकार को पता है। बेशक बेशक, दिन की रोशनी में उनको पता नहीं, सुभान सरकार को रात के अंधेरे में पता सुभान है। अल्लाह, दीवार का वॉल्यूम कम है, उसके मुकाबले में कब्र की मिट्टी का वॉल्यूम ज्यादा है, वाह वाह, उसका जखामत और उसका हुजम ज्यादा है। उसके पार जो निगाह देख रही है अंदर कौन है, उसके बारे में ये मानना पड़ेगा कि वो सिर्फ गैब जानता ही नहीं, गैब को देखता भी। अल्लाह, मैं जानता हूं कि लंदन फला जगह है, लेकिन उसका देख नहीं रहा हूं। वो है मेरे इल्म में है, लेकिन मेरी आंख उसको देखती नहीं। सरकार गैब जानते भी है, गैब देखते भी। अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके बाद आप अंधेरे में देख कर अब जरा कौन है वो, अब बोल ना जरा, अब इधर तक ना कोई पर बल्ला लाने वो कौन है? 100 बारी पूछ लियो, लाइटा भी लगी है तो बंदा सियाना नहीं होना। बल्ले कब्र के अंदर है, वाह, उसकी वफात हुए कई हजार बरस हो चुके, वो खड़ा भी है, नमाज भी पढ़ रहा है। अल्लाह, अब सवाल उठता है कि उसको सरकार ने पहचाना किस कुव्वत के जरिए से है? सुभान अल्लाह, अगर तो सरकार के साथ बचपन में खेले होते पहचान जाते और बात, वाह वाह, सरकार की कभी ऐसे दुनिया में मुलाकात हुई थी पहचान जाते और बात होती। इसका मतलब यह है कि किसी और मजलिस के पहचाने हुए हैं, इसलिए अंधियारी रात में कब्र की गहराई में मिट्टी के परे उसका खड़ा होना भी पता और काम भी पता और काम की रोयत भी पता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बारी मैं गया लिल्ला शरीफ, अच्छा जी, वो एक बंदे को अब्दुल की भी गया, मैं कहा ओ सईदे पे हुआ एक तो मतरेंदा हो गया कि मां ने बता दिन की रोशनी में ये पता नहीं कि सजदे में गिरा हुआ है या अपनी इंसानी जरूरत पूरी कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, आप जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते मैं उनको कब्र में खड़ा देखता हूँ कि वो नमाज पढ़ रहे हैं, यार आखिरी नमाज तो वो थी जो पढ़ के दुनिया से वो रुखसत हो गए, अब ये कौन सी नमाज है? अल्लाह अल्लाह, इससे मानना पड़ता है नबी दुनिया से जाने के बाद भी जिंदा है बेशक, और कुर्बे खुदाबंदी के लिए वो इबादत करते हैं, मगर जो खड़े हैं नमाज पढ़ रहे हैं, उसकी दूरी कितनी है बैतुल मक़दिस से? जितना 2 पत्थर मारे तो फासला बनता है ना, इतना फासला बैतुल मक़दिस शरीफ उसका है। ये बुखारी शरीफ का दुआ है। सुभान अल्लाह, जिधर 2 पत्थर मारने से दूरी बनती है ना, उतनी दूरी पर बैतुल मक़दिस शरीफ से उनका मिज़ार है। अच्छा, वहां खड़े वो नमाज पढ़ रहे हैं, अब आने जाने का कोई सुराख नहीं है। सरकार को तो बुराक लाया, उनको कौन लाया है? आगे जब जाके देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम उन सफों में खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं। इससे पता चला अल्लाह का नबी उधर कब्र में खड़ा भी है और उधर इंतजार करने वालों की सफों में खड़ा होकर इंतजार भी कर रहा है। बेशक। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात बाबरकात जमात तशरीफ ले गए, सरकार का बुराक सखरा इसमा से बांध दिया गया। उसके बाद बांध देने के बाद सवाल उठा के ये नबी रसूल किस लिए आए हैं? इस पर हजरत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह बुखारी 25 जिल्दों की किताब है, उनका अपना सन वफात 854 है। और अनफियों में इस पाए का मुहद्दिस क्या और दूसरी जमातों और दूसरे तबकों में भी उनके पाए का मुहद्दिस कोई नहीं मिला। उन्होंने हनफियों का कर्ज उतारा है, उन्होंने इस जगह बहस की है का इस पर सब मुत्तफिक है कि नबी आए, लेकिन किस बदन के साथ आए? का हकीकी वाकई बदन के साथ आए। वाह वाह, असली बदन जो नबियों का था। इसका मतलब यह है कि नबियों की असल बॉडीज जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती,
बेशक वो कायम रहती है। हयात भी उनकी हकीकी होती है, मजाजी नहीं होती। सुभान अल्लाह सचमुच जिंदा होते हैं। और फिर जिंदा होकर ये एक मसला था, जब तक जिब्रील ना आए नबी को पता नहीं होता। अगर जिब्रील के आने से ही पता होता है तो जिब्रील अभी तो इधर मसरूफ है, वाह इन सारे नबियों को किसने जाके बतलाया है कि सरकार आ रहे हैं, चलो इंतजार करो। सुभान अल्लाह वाह वाह इससे पता चला बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं नबी और खुदा को आपस में पता होता है, जिब्रील को पता नहीं होता। बेशक सुभान जिब्रील इधर मसरूफ थे तो उनको किसने बतलाया है कि आओ। पता चला कि उनका इल्म जिब्रील के मुकाबले में ज्यादा सीनियर इल्म है, अल्लाह उनका गुरु ज्यादा है। अल्लाह अल्लाह अब इंतजार करते करते जब सरकार तशरीफ ले आए तो सरकार ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, आप सबके अब्बा होते हैं, फतक़द्दम, आप आगे होकर के नमाज पढ़ाएं। कहते यबनी सूरतन भैया अभी माना, ज़ाहिरी तौर पर मेरे बेटे और बातनी तौर पर मेरे बाप, मैं आपके आगे खड़ा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह इससे पता चला अदब के तकाजे ये हैं कि अगर कोई बड़ा बुजुर्ग भी कहे कि आगे खड़े हो जाओ तो छोटे को समझना चाहिए कि मैं इस जगह खड़ा होने के लिए नहीं। अल्लाह अल्लाह वाह वाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप आगे हो, इसलिए कि कुरान मजीद ने आपके लिए लफ्ज़ इमाम इस्तेमाल किया। पूछा किस जगह, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, सुभान अल्लाह हम आपको लोगों का इमाम बनाने वाले हैं। कहा ऐ महबूब किबरिया, ये बात मेरे इल्म में भी है कि मुझे अल्लाह ने इमाम कहा, पर किन का इमाम कहा, लिन्नासि इमामा, लोगों का इमाम है। लोगों का इमाम में हूँ लेकिन नबियों का इमाम सिर्फ तू ही है, तेरे सिवा नबियों का इमाम। सुभान अल्लाह वाह वाह नबियों का इमाम सिर्फ तू ही हो सकता है। अब महबूब किबरिया आज़म आगे खड़े होते कहते अना इमामुल मुरसलीन अल्लाह अल्लाह वला फखरा, अल्लाह अल्लाह मैं रसूलों का इमाम हूँ पर इस पर फख्र नहीं करता। क्यों नहीं फख्र करता, बात तो फख्र वाली है। जिसने मुर्दे जिंदा किए वो पीछे खड़ा है, आप आगे हैं, बात फख्र वाली तो है, करते क्यों नहीं। अल्लाह अल्लाह जिसने लाठी मार के समुद्र को चीर के रख दिया वो पीछे खड़ा है, आप आगे खड़े हैं, हक है बात फख्र वाली है, करते क्यों नहीं। वाह वाह जिसने आग के शोलों पर पांव रख के उनको बागो बहार करके छोड़ दिया, गुलजार बना के रख दिया, नार को गुलजार करने वाला पीछे खड़ा है, आप आगे खड़े हैं, बात फख्र वाली तो है, करते क्यों नहीं। सुभान अल्लाह जो मुर्दे जिंदा करने वाला है वो पीछे खड़ा है, आप आगे खड़े हैं, बात फख्र वाली तो है, करते क्यों नहीं। अल्लाह अल्लाह इस पर मुल्ला अली कारी ने बड़ा खूबसूरत लिखा। मुल्ला अली कारी हरात के रहने वाले हैं, मक्के शरीफ में तकरीबन 30 बरस के हेर फेर में आपने इमामत और खिताबत मजहब हनफी की फरमाई और वहाँ आपने इल्म हदीस भी पढ़ा। पूरा हिंदुस्तान जो है वो तकरीबन उनका शागिर्द बनता है। शाह अब्दुल हक महदूस देलवी इनके शागिर्द थे। अल्लाह अल्लाह हजरत इमाम इब्न हजरी मक्की के शागिर्द हैं मुल्ला अली कारी और इनके शागिर्द हैं शाह अब्दुल हक महदूस देलवी। वाह वाह उनका समय वफात है 1014। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद रसानी शेख हम सरांदी रहमतुल्लाह अलैह का दौर इनका दौर एक है। तो ये अपनी किताब मिरकात शरीफ मिशकात के अंदर लिखते हैं, कहते हैं कि परवरदिगार आलम ने जो सरकार को शान दी है ना वो समझने वाली है कि सारे नबियों के आगे खड़े होकर इमामत फरमा रहे हैं और वादा में नबियों का इमाम पर फख्र नहीं करता। कहा क्यों फख्र नहीं करता, फख्र वाली बात तो है। कहा दरअसल ये मेरे लिए मकाम फख्र नहीं है कि मैं रसूलों और नबियों का इमाम बन जाऊं, ये नबियों के लिए मकाम फख्र है कि मेरे जैसा उन्हें इमाम मिल जाए। सुभान अल्लाह वाह वाह मेरे लिए फख्र की बात नहीं, वाह वाह उनके लिए फख्र की। इस जगह एक मसला है कि नमाज तो वापसी पर फर्ज हुई है, तो क्या कितनी रकतें पढ़नी चाहिए, क्या सबक पढ़ना चाहिए, गल पल्ले भी पहने के कोई अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह यार 4-6 मिनट बाद चुक्का मारना पवे कोई जो मर्जी नहीं है। सुभान अल्लाह ये बात पहले पढ़नी चाहिए। महराज से जब सरकार वापस हुए ना उस वक्त नमाज का सबक तालीम हुआ कि नमाज की रकतें इतनी होंगी। ये बात भी आप याद रखें, पहले 2 रकत ही नमाज फर्ज हुई है, 3 रकतों वाली ये 4 वाली फर्ज नहीं थी। ये बात हुई है, अल्लाह अल्लाह ये बात सरकार ने एडिशन किया है। जब 2 रकतों वाली थी और उसी रात सिखाई गई तो वो तो वापसी पर सिखाई गई, उसमें पढ़ना क्या है, कौन कौन सी सूरत पढ़नी है, कितना सबक पढ़ना है, मुंह किधर करना है, सीधे कितने करने हैं, रुकू कितने करने हैं, ये तो महराज से वापसी पर तालीम हुई। जड़ी जाने तो पहले पढ़ लगे एक ऐसी। अल्लाह अल्लाह क्या बात है जी वाह। हुन दसो ये विचू पाड़े करने जो ईमान ना दसो सारी जिंदगी पाड़े मिलने नहीं हैं। वाह वो तो वापसी पर नमाज फर्ज हुई है।
ये जाते वक्त ये किस तरह की नमाज है? हक है। कहा वो नमाज फर्ज है, ये नमाज इश्क है। सुभान अल्लाह। नमाज फर्ज उसी तारीख को फर्ज हुई वापसी पर, लेकिन नमाज इश्क का किस्सा पुराना चला आ रहा है। और एक बहाना है कि महबूब हाथ लग गया जिब्रील अमी के, तो इसने कभी सीना फाड़ने के बहाने से देर लगाई, कभी जुल्फों को तरतीब देने के सिलसिले में देर फरमाई, और कभी लिबास पहनाने के बहाने से देर की। अब हमारे हाथ आ गए हैं, ऐ मेरे महबूब नमाज नियत कर ले, आगे खड़ा हो जा। और लोग कहते हैं कि जी देर हो रही है, देर हो रही है। कौन कह रहा है? का चांद कहता है, सूरज कहता है, इनके घड़ियां ही बंद कर दो। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। घड़ियां चलेंगी तो डेटें बनेगी, अगर ये वक्त मापने वाली घड़ियां वही बंद हो जाएं तो आज दिन रात दे किस्से रहने दियो, घड़ियां दिया बैसा रहने दियो। सुभान अल्लाह। दिया बिछड़िया सजना हक है। अज रल मिल के जरा बैण दियो। सुभान अल्लाह। अज जुल्फे मुअंबर कहदी है, जड़ी नैना दे पछोकड़ रहदी है। सुभान अल्लाह। बूढ़ियो नैनो यार दियो, जरा आमने सामने बैठ दियो। सुभान अल्लाह। आमने सामने बैठ दियो। हक है। सुभान अल्लाह। सारे नबी पीछे खड़े हैं, देखने वाला मंजर है कि नहीं? बेशक। बेताबी हो रही है कि जरा वक्त लंबा हो जाए। आसमानों पर एक और तरह की बेताबी है, जिन फरिश्तों की बॉडियां इस तरह की हैं कि जमीन पर आ नहीं सकते, या उनको जमीन पर आने का आज महराज की रात फॉर्मेलिटी जो जारी हुआ है वो सिर्फ 70,000 को हुआ है, बाकियों को इजाजत ही नहीं हुई। अब क्या करें? वो बेचैनी के आलम में कहते आमी आमी अल्लाह। सुभान अल्लाह। आमी आमी वैना सुभान अल्लाह। जाद हुसैनी अल्लाह अल्लाह। आयनी पौर मोहम्मद बख्शा। सुभान अल्लाह। करके आस अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, इमाम मुफक्किर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर जीलानी। माशाअल्लाह। बड़ा लंबा है। अल्लाह अल्लाह। तकरीबन कोई 1.25 घंटे से ज्यादा अर्ज कर चुका हूँ, तो अब अगर इजाजत हो जाए तो तकरीबन कर तो वापस जाना है। आपके भी साथी काफी देर से बैठे हुए हैं और ये भी थक गए होंगे। सब मस्तकामों फिर डट गए। अल्लाह करीम फरमाता है, डटना तुम्हारा काम है, आसमानी रहमत की बरसात लाना हमारा काम है। ये बात भी कि सरकारी बगदाद रज़ी अल्लाह तआला महराज की रात हाजिर बारगाह रसालत माब हुए कि नहीं हुए?